the tenses series. This is lesson number 32, and today we will try to discuss present continuous tense. In this tense, we will try to discuss many things. So, a comprehensive study on this topic. Let's try to understand the concept of present continuous tense. When we start learning tenses, the first tense is always present. On one side, this is present indefinite tense. This is also called present simple. On the other side, this is present continuous tense. This is also named as present progressive. So what is the major difference here? In the present indefinite side, I give one example, I work. But on the other hand, in the present continuous tense, I take the example, I am working. So what is the major difference here? Let us try to understand. If I say this is present continuous tense, then it is going on at this moment. It is going on at right now. What in the present indefinite side, this is general. If I say that I work, so I am not working at this moment. It doesn't mean, it means this is the general thing. So if I am working, that means this process is going at this moment. This process is going now. And this is temporary. If I say that I am working, this is temporary action. But in this side, this is the permanent action. But today, our topic of discussion is present continuous. So I take more examples in this tense. You are working. Here it is am after the subject. But here in the second example, there is are after you. Why is it so? Let's take more examples. We are working. You are working. Two boys are working. I am taking two example, two boys for plural noun. She is working. It is working. A boy is working. So I take the example, a boy for singular noun. There may be more examples, but I am representing the singular pronoun or noun with a boy. So see, this is the first category and this is second category. This is are. In the first there is am, and the third category there is. So कब am आता है, कब आ रहा है और कब is आता है, इस देखते हैं. am only with I. सारे इंग्लिश में am सदा सिर्फ I के साथ आता है, बाकी कहीं भी नहीं आता. and are with you, we, they, and plural noun. Plural noun में whatever is plural, that is called plural noun. So this is. So are is used with these, and is with he, she, it. Third person singular and singular nouns is with that. So this. We commit mistake sometime. As far as you is concerned, we take you as a singular, but it takes plural verb after that. So remember this. Structure of tenses. Continuous progressive affirmative. Just a review, we have learned it earlier in lesson number 25 with the topic name and overview of tenses. जब भी आप टेंसेस सीरीज देख रहे हो, आप सदा ही टेंसेस कोई भी लेसन देखने से पहले आप लेसन नंबर 25 देख लिया करो, उससे आपको इजी लगेगा. तो ये हम वही थोड़ा जल्दी करेंगे इसको. टेबल नंबर 4, मैंने लेसन नंबर 25 में 6 टेबल करवाए थे, तो आज टेबल 4 की बारी है. टेबल 1 दैट वाज टेबल फर्स्ट एंड सेकंड वर कंसर्न विद नो एक्शन कैटेगरी. टेबल 1 फॉर स्टेट ऑफ बीइंग शो करने के लिए, एंड टेबल सेकंड फॉर पोजेसिव नो एक्शन के लिए.
and table 3rd for indefinite category, table 4 for continuous. I am taking table 4 today, and table 5 for perfect tense, and table 6 for perfect continuous. There are 6 tables in lesson number 25. The first 2 tables are concerned with no action category, and the last from 3rd to 6th, last 4 have concern with the tense category. So today I am taking 4. Let's see. Subject in present tense is MR as helping verb, then verb, first form of verb with ing, then object. In the past tense, the helping verbs are was and were, and the main verb with ing. And in the future category, the helping verbs are shall be or will be, and main verb, first form of the verb with ing, in other words. So what is happening here? In the first section, the helping verb side, and this is the main verb side. The helping verb changes as per change in tense. या टेंस चेंज होगा तब चेंज होगा, या सब्जेक्ट का नंबर जब पर्सन चेंज होगा ये तब चेंज होगा, बट नो चेंज हियर, इट रिमेन द सेम, दिस पार्ट रिमेन द सेम. बट टुडे वी आर कंसर्न विद present continuous tense. So is MR. So this I am taking this way. Subject is MR, then first form of verb ing, then other words. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ये कैसे बनते हैं तो अभी आपको पता लग जाएगा. सब्जेक्ट, देन टू बी, देन वर्ब with ing, first form of the verb with ing. What is to be? To be is the auxiliary verb. Is MR for present and was verb for past. So to be, I mean this. For present is MR, and past, for past was were. So subject is I. M due to I. Is due to this. Is MRs are selected on the basis of the subject. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप मेरा लेसन देख सकते हैं, काफ़ी लंबे 2 लेसन बनाए हैं इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, कि वर्ब की सिलेक्शन सदा ही सब्जेक्ट के मुताबिक होती है. वर्किंग, वर्क, देन इंग. लेट अस हाउ द पॉजिटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड. आई एम विद आई, पीछे देखा हमने. वर्किंग, से लाइक दिस, यू आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, they are working, 2 boys are working. हम कुछ और भी बोल सकते हैं, तो मैंने 2 boys से प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट किया है. he is working, she is working, it is working, a boy is working. I know how to make the sentence negative. Very easy. You just write not with these helping verbs am, are, like this, and say. How to say? This is negative. Not working. Just write not between the helping verb and the main verb with ing. I am not working, you are not working, we are not working. Say like this, it is not working, a boy is not working. This is how the negative sentences are formed. But in case of question, the things are different. We have to interchange the subject and the helping verb. In the positive, it is I am working. But in the question form, interchange the subject and the helping verb. M's come forward, M आ गया जी, उसका पहला लेटर बड़ा होगा. Then I, am I working? R के साथ you, are you working? Are we working? Are they working? Say like this. Is he working? Is she working? Is it working? So here you can replace the working with some other verb. Play, you can say I am playing. You practice like this, practice 3 or 4 times. तो आपकी जो टंग उसके मुताबिक आई के साथ आता है, ऐसे बोलना अपने आप आ जाएगा. Now WH family, why are you working? Why are we working? Why are they working? Where are you working?
say like this for we and they. When are you working? Say with we and they also. You practice how are you working, how are we working, how are they working, कैसे कर रहे हैं. तो WH फैमिली में तो आपने ये करना है, इसमें 7 होते हैं मेन, बाकी अलग बनते हैं what, why, where, who, which, when and how, बाकी सारे से बनते हैं. तो आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. In this why is he working, why is she working, why is it working, where is he working, and practice with she and it. When is he working, also practice with she and it. How is he working, how is it working. So this is how the positive, negative and interrogative sentences are formed in the present continuous tense. Now uses of प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अगर हम किसी ग्रामर में देखें तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस वहाँ पर देखना हो तो एक आधे पेज में इस चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. इसकी एक कंप्रिहेंसिव स्टडी का मतलब था कि हम हर फीचर्स को देखेंगे कि कहाँ हम कॉमन मिस्टेक करते हैं और कहाँ इंक वर्ब से इंक फॉर्म कैसे बनती है. बड़ा यू विल एंजॉय एवरीथिंग. यू सी every slide contains something new. You try, you remain with me till the end, you will get many new things. So uses of present continuous tense. What is the first use? The present continuous tense is used for an action going on at the time of speaking. कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कब करते हैं, जब वो चीज़ें, वो एक्शन जब गोइंग ऑन उस वक्त चला हुआ हो, जब हम बोलते हैं. तो इसकी एग्जांपल क्या होंगी, जब हम बात बोलते हैं उस वक्त वो एक्शन हो रहा होता है उसकी बात के लिए. एग्जांपल लेते हैं, मुकेश इज़ कमिंग नाउ. मुकेश अब आ रहा है, तो जब वो बोल रहा तभी वो आ रहा है. दे आर प्लेइंग. व्हेन समवन इज स्पीकिंग, they are playing. The persons are playing there. The process is going on at that time. She is writing her name on the blackboard. Some girl is there and some blackboard is there. So the girl is writing her name on the blackboard. This thing is going on at the time of speaking. I am writing my note here. The words like now, at present, at the moment, this morning, currently, this evening are used in the present continuous tense. Present continuous में हम जब ये शब्द हम यूज़ करते हैं, ये जो रेड में मैंने इंडिकेट किए हैं, द टीचर इज़ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट. देखो एट प्रेजेंट लग गया ना यहाँ पर, तो ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसका यूज़ करेंगे. तो ये वेरी सिंपल है. टीचिंग का मतलब आपको टीच में पढ़ाना, तो टीचिंग से मैंने पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा, मैथमेटिक्स. तो बाकी सारा बन जाएगा, बाकी सारा इजी है. द टीचर इज़ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट. अपनी लैंग्वेज में, आपकी कोई भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना सीखिए. अध्यापक इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहा है, लाइक दिस. ही इज़ रीडिंग ए नॉवल नाउ. अब पढ़ रहा है नॉवल. शी इज़ निटिंग अ स्वेटर एट द मोमेंट. इस क्षण में वो स्वेटर निट कर रही है, बुन रही है. दे आर वॉशिंग द प्लेट्स दिस मॉर्निंग. समवन इज स्पीकिंग. Few persons are there, they are washing the plates. Someone is speaking. It means this action is going on at this moment, at the time of speaking. The boys are playing hockey currently. इस वक्त वो लड़के currently हॉकी खेल रहे हैं. तो ये the first use हमारा था, action going on at the time of speaking. But मैं अगले यूज़ में क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो एक्शन तो हो रहा है, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, बट वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं होता. देखते हैं क्या है सेकंड यूज. वी, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड फॉर ए टेम्पररी एक्शन. ये टेम्पररी एक्शन के लिए यूज़ करते हैं, विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कि जब कोई बात कर रहा है उस वक्त नहीं होता, वैसे वो एक्शन टेम्पररी होता है. एग्जाम्पल से पता चलता है. आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस. एक मैं घर नहीं है मेरा, वो मैं एक रेंटेड हाउस है, वहाँ रह रहा हूँ. तो वहाँ रह रहा हूँ मतलब ये है कि वो स्पीकिंग टाइम में, वो टाइम ऑफ स्पीकिंग में बात नहीं हो रही, वो टेम्पररी वहाँ पर रह रहा है. दिस इज़ टेम्पररी एक्शन है, ये टेम्पररी एक्शन बिल्कुल. अंडरस्टैंड. ही इज़ रीडिंग द महाभारत. अगर ये महाभारत पढ़ रहा है आजकल, वो महाभारत पढ़ रहा है मतलब क्या, वो हर वक्त थोड़ा महाभारत पढ़ता है, हट जाता है, फिर पढ़ता है, फिर हट जाता है.
ये वो इसका मतलब है वो आजकल वो टेम्पररी एक्शन है, आजकल वो महाभारत ही पढ़ रहा है, 24 आवर थोड़ा पढ़ सकते हैं। शी इज़ स्टडिंग फिजिक्स दीज डेज, आजकल वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये भी टेम्पररी एक्शन है। पहले थी बात टाइम ऑफ स्पीकिंग, टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात नहीं है, टेम्पररी एक्शन है। सो नेक्स्ट, द प्रेजेंट कंटेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं जब हम नियर फ्यूचर में कोई बात, कोई एक्शन करना हो, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। बात तो फ्यूचर की है, देखते हैं कैसे। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, अभी दिल्ली नहीं गया वो, फ्यूचर में ये एक्टिविटी टू नाइट, आज रात को, ये एक्टिविटी रात को होगी, अभी होनी है, तो फ्यूचर ये कैसा है, नियर फ्यूचर एक्शन। आगे फ्यूचर वाला एक्शन है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस से शो करते हैं। ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताया है। माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो, कल को, अभी ये नहीं आया, आए, कल को आ रहा है, तो ये नियर फ्यूचर एक्शन की बात है। इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एम लिविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ, अगले महीने आई एम लिविंग, मैं पटना के जा रहा हूँ, पटना के लिए लीव कर रहा हूँ, नियर फ्यूचर एक्शन है। नोट सच काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस गिव एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर टाइम। द अबव्स ऑफ टाइम, टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, next moment, next week, next year, this morning, this evening, 5 o'clock, 5 a.m., 6 p.m., etc. are used in such sentences. Next use, the following verbs on account of their meaning are not normally used in continuous form. Stative verbs बोलते हैं उनको। इनको हम, ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनका हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं कर सकते, बट इन सर्टेन स्पेशल कंडीशंस उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस या कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो आगे जाकर पता चलेगा। पहले देखते हैं कि कौन कौन से हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन होता है अनुभूति, फीलिंग, तो जो फीलिंग प्रकट करें उनका वर्ब्स ऑफ परसेप्शन बोलते हैं। जैसे सी, देखना, हियर, सुनना, स्मेल करना, नोटिस, रिकॉग्नाइज, पहचानना। वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, प्रदर्शित होना, तो इसमें कौन से एग्जांपल है ऐसे वो जो प्रदर्शन को शो करते हैं, अपीयर, लुक, सीम। वर्ब्स ऑफ इमोशंस, भावनाएं, जो भावनाओं को प्रकट करें। सो फॉर वांट, विश, डिज़ायर, इच्छा करना, फील, महसूस करना, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज़, प्रेफर। तो ये हमारे जो इमोशंस को शो करते हैं। इमोशन में एक्शन नहीं होता, तभी हम इसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, विचारधारा, सोचना, थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड। तो ये सारे कैसे हैव, पोजेस, यानी ऑनरशिप को शो करने वाले ऐसे कौन से वर्ब्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ओन, पोजेस, बिलोंग टू, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ। बी, एक बी जो हमारा वर्ब है, एक्सेप्ट मैंने यूज पैसिव वर्ब्स में बी इसका बीइंग यूज़ करते हैं, बाकी हम इंग लगाने की इसमें अवॉइड करते हैं। ये वर्ब की मैंने ये लिखी है सारी, ये 5 कैटेगरी में डिवाइड किया इसको, तो इनको अपने इंग फॉर्म में यूज़ नहीं करना ऐसे अननेसेसरी। कब करते हैं, स्पेशल कंडीशन में करते हैं, आगे जाकर बताऊँगा। अभी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये लिखा मैंने रॉन्ग फॉर्म है, क्योंकि हमने वर्ब का जो सेंटेंस बनाया गलत उसका प्रयोग कर दिया, और राइट साइड में लिखा राइट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म। तो मैंने पहले लिखा दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सार, तो टेस्ट है ये, तो टेस्ट में कोई एक्शन थोड़ा होता, एक्शन नहीं होता नहीं। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, इसकी राइट फॉर्म क्या होगी, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है यूजेस। दीज ग्रेप्स टेस्ट सावर। आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, थिंकिंग का यूज़ कर दे तो ये रॉन्ग यूज़ है, कैसे करेंगे, आई थिंक यू आर रॉन्ग। शी इज़ सीमिंग सैड, वो मुझे सीम है ना, ये सीम बिलोंग टू अपीयरिंग कैटेगरी, तो सीम इसका शी सीम सैड, दिस इज करेक्ट। अब और देखिए, ही इज़ हैविंग ए सेल फोन, पोजेसिव वाली फॉर्म है,
तो इसको हम रिप्रेजेंट करें ही शी हैज़ ए फ़ोन, तो ही जहाँ ही, तो यहाँ भी ही आएगा, ये ही हैज़ ए सेल फोन, ही इज़ हैविंग ए सेल फोन, यहाँ पर आएगा ही हैज़ ए सेल फोन। तो यहाँ इधर चेंज शी, तो ये बात समझ गया, ये राइटिंग जो हमारी टाइपिंग मिस्टेक है। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। मोर एग्जाम्पल्स सिमिलरली रॉन्ग फॉर्म एंड राइट फॉर्म। शी इज़ नोइंग हिम वेरी वेल, नोइंग नहीं यूज़ करते इसका, शी नोज हिम वेरी वेल। ही इज़ अंडरस्टैंडिंग इट, तो अंडरस्टैंड में अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करते, ही अंडरस्टैंड्स इट। तो ये थे कुछ जो मैंने पीछे वर्ब्स आपको बताए। अब देखिए, हाउएवर द वर्ब्स लिस्टेड इन प्रीवियस स्लाइड अंडर द हेडिंग्स, जो मैंने पीछे स्लाइड थी, परसेप्शन, अपीयरिंग, इमोशन, थिंकिंग एंड हैव कैन बी यूज्ड इन द कंटिन्यूअस टेंसेस विद ए चेंज ऑफ मीनिंग। जब उसका मीनिंग चेंज हो जाए, मीनिंग में एक्शन आ जाए, अगर मीनिंग में स्टेटिव है तब तो हम उसको इंग फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। मगर जब उसका मीनिंग चेंज हो जाए, मीनिंग में एक्शन आ जाए, तब हम इंग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। दिस टी टेस्ट स्वीट, ये चाय का स्वाद कैसा है, मीठा है। ये तो ठीक है, दिस इज करेक्ट, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, पर हम टेस्ट को हम ऐसा भी कर सकते, ही इज़ टेस्टिंग द टी टू सी इफ इट नीड्स मोर शुगर। ही इज़ टेस्टिंग द टी, टी को टेस्ट कर वो उंगली से लगा रहा है, जी में लगा रहा है, एक्शन कर रहा है, ये देखने के लिए कि इसको कहीं इसको ज़्यादा चीनी की ज़रूरत तो नहीं है, तो एक्शन आ गया तभी हमने टेस्टिंग यूज़ किया। मोर एग्जाम्पल है, अब इफ़ आई फील दैट ही विल बी ए ग्रेट मैन, मैं महसूस करता हूँ कि वो एक बड़ा इंसान बनेगा, महान आदमी बनेगा। तो फील यहाँ जो ये दिस इज करेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। और द डॉक्टर इज़ फीलिंग द पल्स ऑफ ए पेशेंट, जब डॉक्टर पेशेंट की नब्ज़ देखता है, अपना हाथ हटाता है, लगाता है पेशेंट के वहाँ नब्ज़ के ऊपर लगाता है, तो वो एक्शन हो रहा था, तभी इसको फीलिंग का मीनिंग यहाँ वो महसूस करना नहीं, फीलिंग मतलब है वो एक्शन किया उसने, पल्स को वो देख रहा है वो, क्योंकि एक्शन इज इन्वॉल्व हियर, तो दैट्स व्हाई हिज फीलिंग इज यूज्ड हियर। वी सी विद अवर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो सीइंग यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। बट ही इज़ सीइंग मी टुडे, यहाँ सीइंग का मतलब मीटिंग है, उससे मिलने है, वो मिलने आ रहा है, वो मुझे मिलेगा, कैसे मिलता है या ऐसा कुछ भी है, तो सीइंग का मीनिंग मीटिंग से, मीट से मतलब है, मिलने से मतलब है, मिलने के लिए आएंगे चलेंगे। आई हेयर म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, ये ठीक है, दिस इज ऑल द सेंटेंस आर करेक्ट। द जज इज़ हियरिंग द केस, देखो जज वहाँ जज वकील खड़ा है, मैं वो बहस कर रहा है, तो वहाँ एक्शन वर्ड है, तो हियरिंग यहाँ जज, तो हियरिंग इज यूज। द फ्लावर स्मेल स्वीट, द प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया यहाँ स्मेल, बट ही स्मेलिंग द फ्लावर, कैसे नाक वो फ्लावर के पास अपना नाक ले जा रहा है और एक्शन कर रहा है वो स्मेलिंग करने का, फ्लावर की स्मेलिंग करने का, तो जहाँ स्मेलिंग तभी यूज़ किया। ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो ये आपको अब कंपैरिजन करेंगे कि कब इसको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया, कब मैंने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ किया, कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ किया, तो ये बातें क्लियर होगी। तो जो मैंने जो 5 हेडिंग के अंदर परसेप्शन, अपीयरिंग, इमोशन, थिंकिंग एंड हैव, यहाँ हमने अवॉइड करना इनका यूज़ करना, और कब यूज़ करना इनका, जब एक्शन उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब कॉन्ट्रैक्शंस, बढ़ते वहाँ कई बार कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं आई एम, तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या, कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगी, शॉर्ट फॉर्म आई एम। तो अब लर्निंग कैसे कर, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, यू आर लर्निंग, वी आर learning, they are learning, he is learning, she is learning, it is it's learning. And the negative form contractions कैसे होंगी, I am not, you are not, I am में सिर्फ एक ही होती है इसके शॉर्ट एंड फॉर्म, पर you are not में 2 टाइप होते हैं। you are not, देखो या तो आर का ए उड़ा दो, तो साथ में अपोस्ट्रोफी का मन का ये यू आर बन गया, देन नॉट,
और सेकंड क्या होता है भाई, यू को रहने दो, आर और नोट को ये कॉन्ट्रैक्ट करो। यहाँ हमने यू और आर को कॉन्ट्रैक्ट किया, नोट को अलग से रहने दिया। बट इन द सेकंड केस यू आरंट ऐसे बोलेंगे। वी आर नॉट, जहाँ में दो तरीके हैं, टू मेथड्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के। या तो वी आर को करके ए, यू ड्रॉप ए एंड यूज अपोस्ट्रोफ वी आर नॉट। वी आरंट तो इसमें ओ ड्रॉप कर दिया, आर और नोट को कट कर दिया, ड्रॉप ओ, देन इन प्लेस राइट अपोस्ट्रोफी कॉमा। ही इज़ नॉट, he is not, he isn't, it is not, it's not, it isn't, and not. Similarly try it for they and she. they and she से आप प्रैक्टिस करके देखिए तो शॉर्ट एंड फॉर्म की हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल आपको ये कॉन्ट्रैक्शंस समझ आ गई। लेट्स मूव अहेड। इंग फॉर्म ऑफ द बेस वर्ब्स, यानी बेस वर्ब्स में इंग कैसे लगाते हैं कि कंटिन्यूस में हम वर्ब के साथ इंग लगाते हैं, तो उसको लगाने के कुछ एक या रूल्स हैं, मेथड्स हैं। मोस्ट वर्ब्स वी ऐड इंग, ज़्यादा वर्ब्स कैसे, मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि हम उनके साथ हम इंग लगा देते हैं। जैसे ईट, ईटिंग, इंग लगा दिए, एंड वॉक, वॉकिंग। सो मोस्ट ऑफ वर्ब्स टेक इंग आफ्टर दैट। Verbs ending in E. There are certain verbs, base form of verbs, which end in E. What to do in that case? You drop E. You remove E from there and then write ing. Example is use. So I'm dropping this E and writing ing, so using. Similarly for take, I'm taking E away and attaching ing. Take, taking. Verbs ending in IE. There are certain verbs which end in IE. There is IE at the end of the verb. What to do at that place? You have to do two things. First of all, you have to drop IE. And in this place, write Y and then ing. LIE. So this verb lie, it is ending with IE. So you have to drop IE, both. In this place, you write Y. LY, then write ing. This is how ing form of the base verb formed. So tie, I, it is ending with I again. You replace I by Y, then writing, tying. Verbs ending in CVC. What is the meaning of CVC? Previously I have told so many times, CVC means consonant, vowel and consonant combination. So what to do? Double last letter. Double the last letter and then writing. This is clap. L is consonant, A is vowel, P is consonant. So this verb is ending with the CVC combination. So what to do? Double the last letter, P, double P, clapping, then writing. And sit, double TING, sitting, same process. So ing form का समझ आ गया। अब I'm discussing common mistakes, जहाँ पर लोग या बच्चे आम मिस्टेक्स करते हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो you listen very carefully, see very carefully, watch very carefully. There are certain sentences where to be is missing. मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, माई ब्रदर वॉचिंग द न्यूज़। देखो इससे पता लगेगा, इससे सेंस बन रही है कि मेरा ब्रदर जो न्यूज़ सुन रहा है, न्यूज़ को देख रहा है टीवी के अंदर। सेंस तो क्लियर होगी, बट ग्रामेटिकल दिस इज रॉन्ग। अभी देखते हैं क्या इसमें मिस्टेक हो सकती है। रामन नॉट हेल्पिंग हिम, ऐसे लोग मैं बड़े लोग देखते हैं ऐसी मिस्टेक करते हुए। रामन नॉट हेल्पिंग हिम, so something is missing. What is missing here? To be mean is MR, present, in the present form. It means is MR, something is my brother. यहाँ क्या चाहिए अभी देखते हैं, यहाँ चाहिए is रेड से किया है। this was missing, this has been put at the right place. Now this sentence is grammatically correct, but previously it was wrong because is was missing, and here Raman is not helping him. Is was missing. Now is has been placed between Raman and not. Now this sentence is correct. And second mistake, दूसरी मिस्टेक करते हैं, to be incorrect. वो incorrect होता है, to be is MR की फॉर्म correct incorrect होती है। कैसे देखते हैं? Ram and Radha is driving. You is not studying. मैंने पहले बताया था। Ram and Radha sweat verb combination में देखिए जो मैंने लेसन बनाए हैं,
कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सिलेक्शन सदा ही सब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो राम एंड राधा, दिस इज राम एंड राधा, दीज आर टू, दिस इज द प्लूरल, इज नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा। देखो राम एंड राधा आर ड्राइविंग, और यू के साथ इज नहीं आता, यू चाहे सिंगुलर है, इट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब, तो यू आर नॉट स्टडिंग, डोंट कमिट दिस मिस्टेक। नेक्स्ट मिस्टेक क्या हो सकती है, वर्ब इनकरेक्ट, जो मेन वर्ब होता है वो इनकरेक्ट होता है। शी इज़ डू हर होमवर्क, इसके साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ठीक है। ये मेन डू इज़ द मेन वर्ब हियर, ये कैसे आएगा भी देखते हैं। द गेम इज़ स्टार्ट नो, ऐसे लोग बोलते हैं, मैं देखे गलत करते देखें, तो ग्रामेटिकल दीज आर मिस्टेक। शी इज़ डूइंग, डू नहीं आएगा, डूइंग आएगा हर होमवर्क। द गेम इज़ स्टार्टिंग नो, स्टार्ट नहीं आएगा, इंग आएगा। और गलती स्पेलिंग की हो सकती है, जब हम कॉमन मिस्टेक अक्सर स्पेलिंग की पीछे इंग फॉर्म बनाते हैं, उससे मिस्टेक करते हैं। शी इज़ लाइंग, द मेन वर्ब इज़ लाई हियर, LIE, इट इज़ एंडिंग विद आई। सो पीछे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक बताया, पीछे मैंने इंग फॉर्म में बताया था, जब वर्ब मेन वर्ब आपका IE से एंड हो तो उसको हम ड्रॉप करते हैं, उसके बाई लिखते हैं। आगे देखें, ही इज़ सिटिंग, ये स्पेलिंग मिस्टेक लगती है। यू आर राइटिंग, RWRITING लिख दिया है, तो यहाँ मिस्टेक आई को ड्रॉप करी, वाई लिखिए। करेक्ट इज शी इज़ लाइंग। तो ये SIT CBC कम्बिनेशन है, ये डबल टी करना पड़ेगा। ही इज़ सिटिंग, यू आर राइटिंग, WRITE है, ई को ड्रॉप करने में कहते हैं ना, ING लिखना पड़ेगा, बिकॉज द मेन वर्ब इज एंडिंग विद ई। तो ये वो मिस्टेक थी, यू आर राइटिंग। और स्टेटिव वर्ब्स, जहाँ हमें स्टेटिव वर्ब हम गलत यूज़ कर इंग फॉर्म लगा देते हैं, वहाँ गलती होती है। आई एम नीडिंग सम बटर एंड आई एम वांटिंग टू विजिट अमेरिका। नीडिंग या वांटिंग नहीं होगा, दीज आर स्टेटिव वर्ब्स। कैसे करेंगे, आई नीड सम बटर, आई वांट टू विजिट अमेरिका। अब परमानेंट जो एक्शन परमानेंट होते हैं, उसका हम कंटिन्यूस में नहीं यूज़ करते, उसका हम करते हैं वी आर मैन्युफैक्चरिंग कार्स, हम कार बना रहे हैं। द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, घूम रही है, तो इसको हम प्रेजेंट में शो करते हैं, वी मैन्युफैक्चर कार्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये हम जो कॉमन मिस्टेक कुछ करते हैं, हर फैक्टर को हर स्लाइड में कुछ ना कुछ नया मैंने बनाने की कोशिश की है। थिंक एंड एक्ट लाइक दिस। अब मैंने ये आप कैसे घर में प्रैक्टिस करेंगे थिंक एंड में, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है, तो मैंने कि बेसिक सेंटेंस लिया। बेसिक हम सेंटेंस लेते हैं, राधा इज़ मेकिंग कॉफ़ी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मैंने बेसिक सेंटेंस लिया। इसको आपको एकदम चेंज करना होना चाहिए। इसका नेगेटिव ये होगा, राधा इज़ नॉट मेकिंग कॉफ़ी का पहले प्रैक्टिस की है, ऐसे भी आप करिए। इसको इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, ये बन गया। इंटरोगेटिव में सबसे ये पहला लेटर होता है, बड़ा होता है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनता है, हम डबल फैमिली का यूज़ कैसे करते हैं, वाई का यूज़ किया, यहाँ वेयर का यूज़ किया। हाउ इज़ राधा मेकिंग कॉफ़ी, तो ये मैंने व्हेन इज़ राधा मेकिंग कॉफ़ी। आपको डिफरेंट 7 जो मैंने बताए हैं, व्हाट, वाई, वेयर, हु, विच, व्हेन, हाउ, हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, तो जितने हम यूज़ करते हैं उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हाउ टू चेंज द बेसिक सेंटेंस राधा इज़ मेकिंग कॉफ़ी इनटू द प्रेजेंट इंडेफिनिट। How to change the basic sentence into the past indefinite tense, similarly into future indefinite tense. तो you try more sentences by taking different base verbs. इतने आप सोच सकते हो, इतने एक्शन आप सोच सकते हो, उस देखिए। तो जहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दी, प्ले, सिंग, वॉच, ईट, डांस, जंप, ड्राइव, बिगन, वाई, catch, find, sleep, speak, teach, learn, write, etc. Think more of daily use. आप डेली यूज़ वाले आप एक्शन आप सोच सकते हो, जैसे आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम बाथिंग, आई एम टेकिंग बाथ, आई एम, ऐसा डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आप डेली कर सकते हो, आप उसके बोल के देखिए बार बार, तो इससे आपकी थिंक एंड एक्ट लाइक दिस। तो ये मेरा टॉपिक में रखा था, थिंक एंड एक्ट लाइक दिस। यू थिंक ऑफ सम वर्ब, कन्वर्ट दैट इनटू इंग फॉर्म, देन मेक
the present continuous first of all, then different types, negative, interrogative, and negative interrogative, then use of WH family, and into the that tenses which we have learned so far. We have learned the indefinite category, उसमें आप कन्वर्ट करना सीखिए. इसके बाद मैंने किया है सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज. तो ये किया, इसमें कैसा दिया, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं नीचे, उसको फिल करना आपने विद द सिंपल और कंटिन्यूस फॉर्म. या तो आपसे सिंपल आप प्रेजेंट टेंस का, या तो सिंपल, यानी सिंपल मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, या कंटिन्यूस फॉर्म जो वर्ब दिया है ब्रैकेट के अंदर उसका अपने या तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल में उसका यूज़ करना, या कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ करना. सोच के करना कि कब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं और कब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. डोंट मेक ए नॉइज़, द चाइल्ड, दिस द ब्लैंक हियर नाउ, एंड स्लीप यहाँ दिया है. ऐसे इट जहाँ ब्लैंक दिया, इन जुलाई, इट ब्लैंक दिया नाउ, और एक वर्ब दिया आपको रेन. इसका कैसे आपने यूज़ करना, क्या ये सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ होगा या कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ होगा. तो ऐसे आप कर सकते हैं. ये इसका 15 जहाँ मैंने एग्जांपल दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कोशिश करिए करने की. सो आई होप यू वुड हैव लर्नड मैनी थिंग्स इन दिस टॉपिक. सो काफ़ी हमने चीज़ें कवर की. आप हर लेसन में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. इस टाइम थोड़ा लेट हो गया. आगे कोशिश करें. नेक्स्ट लेसन में भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस कि कंटिन्यूस सीरीज़ चली है आजकल, इंडेफिनिट खत्म हो गई है. मैंने लेसन नंबर 25 में लेसन्स की ओवरव्यू किया था, इंट्रोडक्शन की. तो उसके बाद हम टेंसेस के पीछे लगे हैं. कुछ शॉर्ट्स लेसन है, हर टेंस का एक अलग से लेसन है, उसकी कैटेगरी का एक अलग से लेसन बनेगा. उसके बाद हम ये भी करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ऐसे कि इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे. ये सारे टेंसेस करने के बाद हम वो भी करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. आप एंड तक मेरे साथ रहे और आपने शायद अच्छी चीज़ें सीखी होंगी. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, और आइकन बेल को क्लिक करिए ताकि नेक्स्ट जब मैं लेसन डालूँ आपको उसका मैसेज आए. सो थैंक यू वेरी मच.